Now we're starting lecture 2, carbonyl group chemistry. Are you getting my voice? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो ये मुझे बता दें। जी हाँ, Yes, sir, Ari. बस ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। Carbonyl group chemistry, this is our main topic. Uh, Course outline, this is our second unit or second lecture, introduction and IUPAC naming of ketone. Previously, we have discussed about introduction and IUPAC naming of aldehyde. Name IUPAC name the same way by which you can write the name of ketone using IUPAC method. This is our second lecture, introduction and IUPAC naming of ketone. If you will see the McMurray Organic Chemistry, ninth edition, the pages 604 to 607, these are the pages in which IUPAC naming introduction of ketone will be there. You can see the book. Introduction and IUPAC naming of ketone. The ketones, the common name of ketone is ketone. Ketone is the intermediate class of organic compounds. You can shift from ketone to alcohol, alkyl halide, and carboxylic acids, ethers, derivatives of carboxylic acid. So this is the intermediate class. If you have carbonyl group in your compound, then you can convert this compound into different classes of organic compounds. So the ketone is the key functional group. You can say the key functional group in organic chemistry. The IUPAC name of ketone is alkanone. We have already discussed that IUPAC is the organization, and this organization uh, have given the name to the parent class alkane. Paraffin, the common name, and IUPAC name is alkane. Alkane is the parent class. All the name of different classes have been derived from alkene class. If you will remove E and add O and E, then it will be alkanone. Alkanone is the IUPAC name of ketone class. E will be removed in alkane and ONE will be added. Then it will be alkanone. Alkanone is the IUPAC name of ketone class. The functional group of ketone class is carbonyl, and carbonyl you can divide into two functional groups, aldehydic and ketonic. If carbonyl, this C double bond O is the carbonyl, this is the carbonyl C double bond O. If both sides alkyl, then it will be ketone. One side hydrogen and one side alkyl, it is aldehyde. Yes, this is functional group ketonic. Ketonic means carbonyl attached with two alkyl groups, two carbon chains. Both sides carbon chains are available. It means it is ketonic group. If one side is hydrogen and the another side is alkyl group, then it will be aldehydic group. So this is the example of a ketone. This is the carbonyl group. This is the carbonyl group, and one side carbon chain, another side another carbon chain. So this is the ketone. You can identify in the compound that it is ketonic group, and this compound is ketonic compound or alkyl.
No. How will you write the IUPAC name of ketone? The same way, the same method, journal method by which you can uh, write the name. Uh, First, you will select the longest carbon chain. First, you will select the longest carbon chain in which the functional group is included. Uh, that longest carbon chain will be selected. The second is numbering. Numbering will be started from that end which is near to the functional group. And third one is the you will write the name. First you will write the name of branches with numbers, with their numbers, then the number of functional group, and then the name of parent chain, ketonic chain or aldehydic chain, which will be present. So the naming of the following ketones, this is first compound. You will write the name of this compound. First, you will select the longest carbon chain. This is the long. First, you will select one, two, three, four, five, and one, two, three, four, five. So you can select a five-member carbon chain. You cannot select this one, two, three, because carbonyl is not included in this chain. This is not the longest chain. If it will be the longest chain, but the अगर ये longest chain हो भी तो carbonyl is not include in this chain. So you will select the longest carbon chain in which the carbonyl will be present. So you will select longest carbon chain 1, 2, 3, 4, and 5. Then we will start the numbering uh, from this end 1, 2, 3. थर्ड नंबर पे कार्बोनाइल है और इस एंड से भी थर्ड नंबर पे कार्बोनाइल है. अच्छा, दोनों से थर्ड नंबर पर है लेकिन यहाँ एक ब्रांच मौजूद है, फर्स्ट सेकंड पे एक ब्रांच भी है. तो नाउ यू विल प्रीफर दिस साइड, यानी कार्बोनाइल के लिहाज से दोनों साइड एक जैसी हैं. तो अब मजीद इसको एक एज मिल जाता है कि यहाँ से ब्रांच भी है. जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो अल्केन होगा. अल्केन में कहाँ से नंबरिंग करेंगे? जहाँ से ब्रांच करीब होगी तो वहाँ ब्रांच को देखते हैं. बाकी सब जगह फंक्शनल ग्रुप को, लेकिन चूंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप आपका दोनों साइड से इक्वल है तो हम ब्रांच को फिर कंसीडर कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. अच्छा, 2 पे मिथाइल आ गया. अब हम इसका नाम लिखेंगे जी. अब हम पहले ब्रांचेस का नाम लिखते हैं. सेकंड पे है 2 मिथाइल, इसका नाम आ जाएगा जी 2 मिथाइल. अब 2 मिथाइल आ गया. अब इसका हम नंबर 3 पे हम चलते हैं. तो 3 पे क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसका नाम 3, फंक्शनल ग्रुप का नंबर, और 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया. और चूंकि ये एल्कानोन है तो पेंटानॉन. तो 2 मिथाइल 3 pentanol, 2-methyl 3-pentanol, 2-methyl 3-pentanol. Next, this is the second compound. First, you will select the longest carbon chain in which the functional group is present. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. अभी जो 6 है, एक ये भी 6 है, दूसरा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये भी 6 है. लेकिन इस 6 के अंदर कार्बोनाइल भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है. और ये जो 6 है इसके अंदर कार्बोनाइल आ रहा है, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है. तो हम वो 6 लेंगे जिसके अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो डबल बॉन्ड भी इज इंक्लूडेड एंड कार्बोनाइल इज ऑल्सो इंक्लूडेड. अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा. यहाँ से हम हमेशा कार्बोनाइल को प्रीफरेंस देते हैं. 1, 2, 3 पे कार्बोनाइल है, यहाँ से 1, 2, 3, 4 पे कार्बोनाइल है. ठीक है. तो अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पे कार्बोनाइल है. कार्बोनाइल को डबल बॉन्ड पे हम प्रीफरेंस देते हैं. तो यहाँ 1, 2, 3 यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी बिकॉज कार्बोनाइल इज
नियर टू दिस एंड, तो ये 1 2 और 3, 1 2 3 4 5 6। अब पहले नाउ वी विल राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, मिथाइल का नाम लिखेंगे और ये फिफ्थ पर है तो 5 मिथाइल। 5 मिथाइल के बाद फिर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन 5 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ब्रेक करके 5 मिथाइल फिर आप 5 कार्बन है तो पेंटा, 5 इन 3 ऑन। पेंटा मीन्स 5 कार्बन, सॉरी 6 कार्बन, तो हेक्सा, हेक्सा 5 मिथाइल हेक्सा, 5 इन 3 ऑन, ये भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप 5 पेंटीन 3 ऑन भी लिख सकते हैं। 5 पेंटीन 3 ऑन, यानी ऑन जो है वो इसको शो कर रहा है, ये देखिए 5 मिथाइल, ये जो 5 है इसकी मिथाइल आ गया, और फिर 5 पर ही जो है वो हेक्सीन आ गया, और 3 पे जो है वो ऑन आ गया, ये इसका नाम है। इसी तरह एक और हमारे पास कंपाउंड है, इसमें 2 कार्बोनाइल मौजूद हैं। अगर 2 कार्बोनाइल मौजूद होंगे तो हम इसमें किस तरह से इसका नाम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन है। कहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है, यहाँ से करीब है, 1 2 पर आ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और कोई ब्रांच भी नहीं है, तो 2 पे आ रहा है, और 3 4 5 6 पे आ रहा है, 2 और 6 पर आ रहा है, और कितने कार्बन है, 8 कार्बन, 3 3 6 2 8, 8 कार्बन, तब इसका पोजीशन 2 पे है और 6 पर है, 2 6, ये दोनों का पे नंबरिंग दी, 2 6 और 8 कार्बन है, तो 2 6 ऑक्टानोन, ऑक्टानोन है तो यहाँ ऑक्टा, ऑक्टा डाईओन, डाईओन का मतलब 2 कार्बोनाइल, और उनकी पोजीशन शुरू में आपने बता दी 2 और 6, 2 6 ऑक्टा मीन्स 8, और डाईओन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑक्टेन 2 6 डाईओन, और 2 6 ऑक्टा डाईओन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप कंपाउंड के नाम लिख सकते हैं। अगला हमारा जो यूपीएससी नेमिंग ऑफ स्ट्रक्चर, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, दोनों चीजें क्योंकि हमें आनी चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे कंपाउंड का नाम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका नाम लिखना, और नाम दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको चूँकि नाम लिखना है, स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, 4 क्लोरो 2 पेंटानोन, ये कंपाउंड है। इस नाउ यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर, यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर। 4 क्लोरो 2 पेंटानोन, क्या करेंगे, यहाँ से हमेशा राइट से मैंने बताया था स्टार्ट करते हैं, पेंटानॉन, ये बता रहा है कौन सी क्लास है, पेंटानॉन, अल्कानॉन, पेंटानॉन, ये क्लास बता रहे हैं जी कार्बोनाइल कीटोनिक कंपाउंड है, और इसमें कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, और इसकी पोजीशन 2 है, और 5 कार्बन है, 5 कार्बन की चेन है, तो आप 5 कार्बन बना देंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बना दिए, उनकी नंबरिंग भी कर दी, 1 2 3 4 5, अब कहीं से भी नंबरिंग कर दी किसी भी एंड से, और उसके बाद क्योंकि दोनों एंड एक जैसे हैं, फिर सेकंड पे आपने लगाया, सेकंड कार्बन पे कार्बोनाइल लगा दिया, ये आपने, अब आपने 5 कार्बन बना दिए, सेकंड पे कार्बोनाइल लगा दिया, फिर और आगे चले, ब्रांच देखी, 4 पे क्लोरो लगा हुआ है तो 4 पे Cl लगा दिया, बस अब आपने हर के कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जहाँ बॉन्ड कम है वहाँ उतने हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, 4 क्लोरो 2 पेंटानोन, देखें 5 कार्बन आपने बनाए, 5 कार्बन के बाद 2 पे आपने कार्बोनाइल लगाया, और उसके बाद 4 पे आपने क्लोरीन लगाया, और आपने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करेंगे, 2 2 डाईमिथाइल 3 हेक्सानोन, 2 2 डाईमिथाइल 3 हेक्सानोन। अब यहाँ भी आप यहाँ से देखेंगे कौन सी क्लास है, हेक्सानोन मीन्स के कीटोनिक क्लास है, और हेक्सा मीन्स 6 कार्बन लगे हुए हैं, और कीटोनिक ग्रुप जो है वो 3 पोजीशन पे लगा हुआ है,
ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली। कि अब आप 6 कार्बन बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 बना दिए, और 3 पोजीशन पे आपने तीसरे कार्बन पे आपने कीटोनिक ग्रुप लगा दिया, ये हो जाएगा। फिर आप आगे देखते हैं ब्रांचेस। अब जो ब्रांचेस हैं वो मिथाइल हैं, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं, उनकी पोजीशन 2 2 है। तो आपने 3 पे तो कार्बोनाइल लगाया था, और 2 पे आपने दो, एक मिथाइल ऊपर लगाया, एक नीचे। बस ये 2 2 डाई मिथाइल 3 हेक्सानोन हो गया, और जितने बॉन्ड कम है कार्बन के उतने हाइड्रोजन हर कार्बन पे लगा दिए, तो ये 2 2 डाई मिथाइल हेक्सानोन हो जाएगा। ये देखें, आपने पहले 6 कार्बन बनाए, 1 2 3 4 5 6। 3 पे आपने हेक्सानोन यानी कीटोनिक ग्रुप लगाया, 2 पे आपने 2 मिथाइल लगाए, और बाकी हाइड्रोजन आपने बैलेंस कर दिया। तीसरा जो कंपाउंड है वो है 2 मिथाइल ऑक्ट 2 इन 4 ऑन, 2 मिथाइल ऑक्ट 2 इन 4 ऑन। अब ये कौन सी क्लास है? जो ऑन है ये बता रहा है कि इसमें कीटोनिक ग्रुप है, उसकी 4 पोजीशन है। इन का मतलब ये कि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें 2 पोजीशन है डबल बॉन्ड की। ऑक्टा मीन्स के 8 कार्बन है, तो हम 8 कार्बन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये 8 कार्बन ड्रॉ करेंगे, पहले उसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 से लेके 8 तक की। सेकंड पोजीशन, सेकंड कार्बन के साथ हम डबल बॉन्ड बनाएंगे, फोर्थ कार्बन पे आप कीटोनिक ग्रुप लगाएंगे। अब हम ब्रांच देखेंगे, मिथाइल 2 पे लगा हुआ है, तो 2 पे हम एक CH3 लगा देंगे, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे। ये हमारे पास कंपाउंड है, 8 कार्बन बनाए हमने, 3 4 5 6 7 8। 2 पे हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, 4 पे हमने एक कीटोन लगा दिया, और 2 पे हमने फिर एक मिथाइल लगाया, बाकी हाइड्रोजन कार्बन के साथ 3 कम, फिर यहाँ कार्बन के साथ 1 कम, यहाँ कार्बन के साथ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3। इस तरह हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है जी। फिर एक दफ़ा हम देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक हम स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं ये। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कीटोनिक है, नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से हमने किया 1 2 3। तो 2 2 डाई मिथाइल, और 3 पे है हेक्सानोन। अच्छा, जब हम इसका नाम लिखते हैं 3 हेक्सानोन, तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कौन सी क्लास है, हेक्सानोन कीटोनिक क्लास है। और हेक्सा मीन्स 6 कार्बन हम ड्रॉ करेंगे पहले, उसकी नंबरिंग भी कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। 3 पे हम कीटोन लगा देंगे, फिर मिथाइल डाई मिथ 2 मिथाइल है, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल लगा देंगे, बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे, तो ये 2 2 डाई मिथाइल 3 हेक्सानोन हो जाएगा। तो ये जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें भी बहुत सारे नाम दिए हैं, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर दिए हैं उनके नाम लिख सकते हैं। तो इससे आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको भी आसान हो जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं। जी जी, कोई सवाल पूछना है किसी को? सर जो हम रो स्ट्रक्चर करेंगे उसमें जो है, अगर हम यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अगर पेंटेन है तो 5 कार्बन की चेन बना रहे हैं, तो नंबरिंग हमेशा राइट साइड से ही स्टार्ट होगी। अगर लेफ्ट से करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, जी सर। नहीं, स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करने जा रहे हैं तो नंबरिंग तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर दें, एक ही बात है। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर आपके सामने है और आप नाम लिखने जा रहे हैं, तो आप वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से फंक्शन ग्रुप करीब हो। जैसे अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हम लेफ्ट या राइट दोनों साइड से हम चूज कर सकते हैं, कोई हाँ, मतलब अगर आप सही स्ट्रक्चर होगा बना रहे हैं दोनों। तो कहीं से भी कर लेंगे, तो फिर इस वक्त तो दोनों कार्बन चेन है दोनों तरफ से एक जैसी है ना, जब तक उसमें फंक्शन ग्रुप और ब्रांचेस नहीं लगती तो। ठीक है ठीक है। ना। इसकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे ना, बुक से आपके मुख्तलिफ नाम लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको प्रैक्टिस होगी इसकी। जनरल मैथड तो मैंने आपको बता दिया। और ठीक है कोई सर। सवाल? अच्छा, इसमें वो आपकी CR कौन है, अल्फा या अलीगा कोई मौजूद है? जी सर। अच्छा, आप एक काम कर लें कि एक क्लास हमारी जैसे हफ्ते में एक ही क्लास होती है ना आज के दिन, मैं चाह रहा हूँ कि हफ्ते में 2 क्लासें लें।
ताकि हमारा कोर्स टाइम भी बहुत कम है और कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक क्लास और भी अरेंज कर लें, चाहे ट्यूसडे को हो जाए, वेडनेसडे को हो जाए और या फ्राइडे को हो जाए, तीनों में से कोई भी एक दिन, या सैटरडे को हो जाए, ठीक है ना? सर सैटरडे ठीक है। हाँ, बस मुझे बता दीजिएगा ट्यूसडे को अगर एक और क्लास हो सकती है, या वेडनेसडे को हो सकती हैं, या फ्राइडे को हो सकती है। इन तीनों में से कोई पॉसिबिलिटी है तीनों दिनों में से? सर हम देख लेते हैं वैसे, क्योंकि क्लासेस का सब्सी के जो स्टूडेंट होते हैं उनका क्लैश आ जाता है अगर हम कोई कंपलसरी सब्जेक्ट की क्लास रखते हैं, इसलिए सैटरडे कह रहे हैं क्योंकि सैटरडे को बाकी